Hello students, in today's lecture number 3 on alternating current for class 12, we shall have discussion on AC voltage applied to an inductor. In lecture 1 and 2, we already discussed the meaning of alternating current, the advantages of alternating current over direct current, difference between alternating current and direct current, and also we discussed the average value and RMS value of alternating current as well as voltage. Then in lecture number 2 we had a discussion on AC voltage applied to a resistor, और उस केस में हमने देखा था कि रजिस्टर के अक्रॉस जब हम AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एवरेज पावर कंजम्पशन मैक्सिमम आता है कितना, VRMS इंटू IRMS. बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज whenever AC voltage is applied to a pure resistor or when we deal with a purely resistive circuit, then there is no phase difference between voltage and current. Voltage and current has zero phase difference, means both are aligned in same direction, but the average power consumption is maximum. Phase difference is zero, and also we have seen that resistance does not depend on frequency. Now we discuss the AC voltage applied to an inductor. For this we consider a source. Let a source of alternating voltage, let a source of alternating voltage be connected to a circuit consisting a pure inductor of inductance capital L. Let alternating voltage applied to an inductor is written as जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं या करेंगे वो मान लीजिए इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता है. ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज ए साइन वेव इक्वेशन. साइन ओमेगा टी यहाँ पर आ रहा है and Bm is the amplitude of alternating voltage, or we can say the maximum value of alternating voltage, and V is the alternating voltage at any time t. So from this equation it is clear that voltage is changing sinusoidally. कैसे चेंज हो रहा है voltage? Sinusoidally चेंज हो रहा है. Now we draw a circuit in which an inductor is connected. This is the inductor. Assume that this is the inductor, and this inductor is connected to an alternating voltage source. It is connected to an alternating voltage source, and the voltage of this alternating voltage source is Vm sin omega t. Therefore, the voltage across this inductor of inductance capital L would be VL, and that VL would be equal to what? Minus L di upon dt. Why this negative sign? Why this negative sign? It is a vector quantity, and why this negative sign? What does it indicate? बेटे ऑलरेडी हमने पढ़ा है ये क्या है, इंडक्टर क्या होता है, कॉइल होता है, और जब किसी कॉइल में हम करंट फ्लो करते हैं, जब ये वोल्टेज हमने अप्लाई किया तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा कितना, I. ठीक है, जब I करंट इसमें फ्लो होगा तो इस कॉइल में जो करंट है उसकी वैल्यू में चेंज आएगा, जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाएगा करंट,
और जब इसमें करंट चेंज होगा तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और वो इसमें करंट और ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगा, इसलिए वो ईएमएफ बैक ईएमएफ कहलाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि ये इंडक्टर में होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो इतना होगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस इंडक्टर के अक्रॉस? -L/di/dt। क्लियर? सो यू मे राइट, ये तो हमने वेक्टर क्वांटिटी माइनस में लिया, लेकिन यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, इफ वी टॉक मैग्नीट्यूड, if we talk about magnitude, then what can be written? We may write V is equal to VL simply। V किसके बराबर हो जाएगा? VL के बराबर हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि V प्लस VL इज इक्वल टू 0। टोटल जो वोल्टेज होगा सर्किट का, V प्लस इसके अक्रॉस कितना है? VL है, ये 0 होना चाहिए। और हम यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए B बराबर -VL ना लिखने के बजाय B बराबर VL लिखा है। वैसे भी यदि आप -VL भी लिखते हो, वैसे भी यदि आप चलो इसको कंसीडर ना करके इसको लेकर के चलते हैं, भाई टोटल वोल्टेज जो है 0 होगा एज पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आप जानते हो कि सम ऑफ द वोल्टेज इज 0 इन ए सर्किट, तो V प्लस VL 0 हो गया। अब यहां से क्या आ गया? V इज इक्वल टू -VL आ गया। अब -VL क्या है? -VL, यदि -VL निकालें, VL का वैल्यू ये है -LDI/dt, तो -VL क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा LDI/dt। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो फाइनली ये पॉजिटिव साइन ही आना है। तो उससे बेटर है कि आप मैग्नीट्यूड लेकर के चलें। क्या लेकर के चलें? मैग्नीट्यूड लेकर के चलें। VL को हम LDI/dt लिख लेते हैं। VL को क्या लिख लेते हैं हम? VL का मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं LDI/dt। नेगेटिव साइन को हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। नेगेटिव साइन को ना लिखने की वजह क्या है? क्योंकि हम यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं। किसके साथ डील कर रहे हैं हम यहाँ पर? मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं। इसलिए अब यहाँ पर हम निकालना क्या चाह रहे हैं? देखिए हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और हमें सबसे पहले इस वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट में फेज डिफरेंस चेक करना है कि क्या इन दोनों के बीच कोई टाइम लैग है। तो उसके लिए तो हमें करंट निकालना पड़ेगा, और करंट आएगा इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से लिखा जा सकता है कि di/dt इज इक्वल टू V/L। अब यहाँ पर V की वैल्यू रखें आप, di/dt, V की वैल्यू है Vm sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय L। इसको लिखा जा सकता है di/dt इज इक्वल टू Vm/L साइन ओमेगा t, ये आ जाएगा। और यहाँ से आप di की वैल्यू निकालो, क्योंकि करंट हमें निकालना है, तो Vm/L साइन ओमेगा t dt। अब इसका हमें बेटा क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करें हम। इंटीग्रेशन di का करेंगे, और राइट साइड में हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे? देखिए Vm/L का इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि Vm इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कहते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू वही रहने वाली है। और L जो सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है किसका? इंडक्टर का, यानी कॉइल का, वो भी वही रहने वाला है। केवल चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में साइन ओमेगा टी में। तो Vm/L तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब di का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? I हो जाता है, सब जानते हैं। और इधर Vm/L लिखा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी, लेकिन साइन है तो इंटीग्रेशन में क्या आता है? नेगेटिव आता है, तो वो माइनस को हम यहाँ लिख लेते हैं। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, वो माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। लेकिन अभी एक पूरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ साइन ओमेगा टी का, माइनस कॉस ओमेगा टी तो आएगा ही आएगा, और फिर इस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 में ओमेगा भी आ जाएगा। अपॉन में ओमेगा भी आता है, इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है, और यदि डिफरेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाई में आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर आप देखिए ये ओमेगा एल जो है एक नया टर्म आ रहा है। ओमेगा एल क्या आ रहा है, एक नया टर्म आ रहा है। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं वी एम अपॉन ओमेगा एल, वी एम अपॉन ओमेगा एल, और इसको मैं माइनस कॉस ओमेगा टी इस तरीके से लिख सकता हूँ। और माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है बेटा, माइनस कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है साइन ऑफ व्हाट, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखा जा सकता है किसको, माइनस कॉस ओमेगा टी को। माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ पर ये जो वी एम अपॉन ओमेगा एल है, अब यहाँ पर पहले हम ये देखना चाहेंगे कि ये ओमेगा एल क्या है। तो देखिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। सिंस, यहाँ पर लिखेंगे आप सिंस ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्सएल, क्या होता है एक्सएल। एक्सएल जो कि क्या है, एक्सएल ये है क्या है एक्सएल, एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहलाता है ये, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। कौन, ओमेगा एल, या जो कि एक्सएल के बराबर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल लिख सकते हो। ठीक है, अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है ये जान लें। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो अभी इसी में कंटिन्यूएशन में ही आपको लिखना होगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको आप एक्स एल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस इट इज द इफेक्टिव resistance, it is the effective resistance offered by inductor, इंडक्टर के द्वारा ऑफर किया गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसका मतलब इंडक्टर से जब करंट फ्लो होगा तो वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और जो रेजिस्टेंस इंडक्टर ऑफर करता है करंट के फ्लो के लिए उसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस, विच रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। ठीक है, ऑफर्ड बाय इंडक्टर, जिसको क्या लिखा जाता है, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, और यदि हम इसकी और आगे देखें, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई एफ होता है। टू पाई एफ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जिसे आप ऐसे भी तो लिखते हो फ्रीक्वेंसी को इस सिंबल से भी लिखते हो, टू पाई न्यू। ठीक है, तो एफ फ्रीक्वेंसी हो गई, लीनियर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आप एक्सएल को, एक्सएल जो कि बराबर है ओमेगा एल के, इसको कैसे और लिख सकते हैं, एक्सएल को आप लिख सकते हो टू पाई न्यू एल, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। यानी एक्सएल और फ्रीक्वेंसी, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी, देखिए टू एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, और एल जो है कॉफिशिएंट है इंडक्टेंस का। तो एक्सएल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। एक्सएल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यदि फ्रीक्वेंसी को ले लें, यदि हम फ्रीक्वेंसी को ले लें एक्स एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पर ले लें और इंडक्टिव रिएक्टेंस को वाई एक्सिस पर ले लें, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा बेटा, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सएल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो एक्सएल भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए देयरफॉर अब जो इक्वेशन हमने लिखा था, किसका इक्वेशन लिखा था बेटा, देखिए कौन सा इक्वेशन लिखा था हमने लिखा था ये वाला इक्वेशन, I इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये इक्वेशन लिखा था। अब इस इक्वेशन में आप क्लियर हो रहा होगा कि ओमेगा एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएल लिख सकते हैं। और एक्सएल क्या है, एक्सएल क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कह सकते हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन ओमेगा एल की जगह एक्सएल लिख देंगे, और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू ये आ जाएगा, या फिर I इज इक्वल टू, अब ये बी एम अपॉन एक्सएल क्या होगा, ये मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट होगा,
मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट कहो या फिर कहो एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये एक इक्वेशन आ गया, यानी करंट का फाइनल इक्वेशन आ गया अल्टरनेटिंग करंट का। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन क्या था, देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज था Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, और करंट का इक्वेशन क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यदि दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करो, दोनों इक्वेशंस को बेटा कंपेयर करना, ये है Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ये है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी ओमेगा टी की जगह यहाँ ओमेगा टी नहीं है दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है एक, और एक ओमेगा टी है। इसका मतलब कितना फेज डिफरेंस हो गया वोल्टेज और करंट में, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस हो गया। कितने का फेज डिफरेंस हो गया, पाई बाई टू का। कौन आगे है कौन पीछे है पता लग रहा है, साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी में से माइनस हो रहा है करंट में, इसका मतलब करंट पीछे रह रहा है। करंट कौन है, पीछे है, करंट पीछे है। करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज। किस केस में, इंडक्टर के केस में। जैसे रजिस्टर के केस में, रजिस्टर के केस में तो वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच क्या आ रहा है, फेज डिफरेंस पाई बाई टू का। तो एग्जाम में ये प्रश्न आता है, व्हेन AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर व्हाट वुड बी द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप, वोल्टेज एंड करंट विल हैव फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू। कौन आगे और कौन पीछे रहेगा, करंट विल लैग बिहाइंड वोल्टेज फेजर। किस, लैग बिहाइंड मतलब पीछे रहेगा, किसके पीछे रहेगा, वोल्टेज फेजर के पीछे। वोल्टेज फेजर के पीछे कौन रहेगा, करंट रहेगा। या फिर कहोगे वोल्टेज फेजर इज अहेड ऑफ करंट फेजर, वोल्टेज फेजर आगे है करंट फेजर से, कितने से, पाई बाई टू से। या फिर क्या कहोगे, करंट फेजर पीछे है वोल्टेज फेजर से, कितने से, पाई बाई टू से। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, it is clear that when AC voltage is applied, AC voltage is applied to an inductor, a phase difference, when AC voltage is applied to an inductor, a phase difference of pi by 2, a phase difference of pi by 2 will occur, a phase difference of pi by 2 will occur in between किस किस के बीच, in between voltage and current फेजर्स। फेजर्स को और क्या कहते हैं हम, वेक्टर्स भी कहते हैं, करंट फेजर या वेक्टर्स। वोल्टेज फेजर और करंट फेजर के बीच में, या वोल्टेज वेक्टर और करंट वेक्टर के बीच में फेज डिफरेंस होता है कितने का, पाई बाई टू का। अब कौन आगे है कौन पीछे है, इन दिस केस करंट फेजर कहो या करंट वेक्टर कहो, एक ही बात है। करंट फेजर विल लैग बिहाइंड वोल्टेज फेजर, करंट फेजर विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज फेजर बाय पाई बाई टू। और we can say that voltage phasor is ahead of current phasor by पाई बाई टू। एक ही बात है दोनों का मतलब। या तो कहो आप करंट फेजर पीछे रह जाता है वोल्टेज फेजर से पाई बाई टू से, या फिर कहो वोल्टेज फेजर आगे होता है करंट फेजर से पाई बाई टू से, एक ही बात है। ठीक है, अब हम इसके फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वेक्टर और फेजर डायग्राम। वेक्टर या जिसको हम क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम।
ड्रॉ करें पहले, ठीक है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे ड्रॉ करने के लिए हम ले लेते हैं दो एक्सिस, ये वाई एक्सिस लिया और ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस, और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक्स एक्सिस लिया और ये वाई एक्सिस लिया। मान लीजिए इधर तो आप ले रहे हैं टाइम, क्या ले रहे हैं, टाइम, ठीक है, और इधर ले रहे हैं v और i, ऊपर जीरो के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज हैं v और i की, और जीरो के नीचे v और i की नेगेटिव वैल्यूज हैं। v और i ऊपर भी है और v और i नीचे भी है। v और i जीरो के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज हैं b और i की, और v और i की जीरो के नीचे नेगेटिव वैल्यूज हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले वोल्टेज फेजर ड्रॉ कर दें। ये होता है वोल्टेज फेजर का डायरेक्शन, आप सब जानते हैं। और ये वोल्टेज फेजर, और यहाँ पर इसको यदि आप ड्रॉ कर दोगे तो किसका वैल्यू दे देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे देगा। ये आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको मिल जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिल जाएगा इससे, ठीक है ना। ये वी एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिल गया। और करंट फेजर किस तरफ रहेगा, देखिए ये एंगल तो हो गया, आप जानते हो ये एंगल तो हो गया ओमेगा टी, कितना हो गया, ओमेगा टी। अब कह रहा है कि करंट फेजर पीछे है वोल्टेज फेजर से, तो करंट फेजर किस तरफ होगा, डेफिनेटली इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और ये जो वैल्यू आएगी करंट की, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी आई एम, ये करंट फेजर है, ठीक है। और वोल्टेज फेजर से करंट फेजर कितना पीछे रहेगा, वोल्टेज और करंट के बीच कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी ये एरो मैंने इधर लगाया, यानी वोल्टेज फेजर से करंट फेजर 90 डिग्री से पीछे है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात हो गई, ये तो होगा वेक्टर और फेजर डायग्राम। अब यदि हम बात कर लें वेव और टाइम डायग्राम की, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे देख लेते हैं। वेव और टाइम डायग्राम, वेव और टाइम डायग्राम, चलिए ड्रॉ करते हैं। वेव, या जिसको और क्या कहते हो आप, टाइम डायग्राम, वेव और टाइम डायग्राम। वेव और टाइम डायग्राम क्या होता है, वेव और टाइम डायग्राम में हम क्या करते हैं बेटा, दो एक्सिस, वही दो एक्सिस लेते हैं, और ये लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये प्लस वाई हो गया, और ये इधर नेगेटिव वाई यानी वाई डैश हो गया। जीरो के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज और जीरो के नीचे नेगेटिव वैल्यूज। हम क्या ले रहे हैं, वी और आई, ऊपर जीरो के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू और जीरो के नीचे नेगेटिव वैल्यूज। अब वोल्टेज को वेव के रूप में प्रेजेंट करें, इधर हम टाइम ले रहे हैं, इधर क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं इस एक्सिस पर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी एम साइन ओमेगा टी, ये वी एम साइन ओमेगा टी हो गया नहीं, ये हो गया आपका वी एम साइन ओमेगा टी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। साइन वेव जानते हो ना, 11th क्लास में मैंने बताई थी, t इज इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, v का वैल्यू जीरो, देखो आ रहा है ना जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पर v का वैल्यू जीरो आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो करंट फेजर, करंट जो वेव होगी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, करंट का इक्वेशन क्या आया था हमारा, करंट का इक्वेशन आया था I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसका मतलब वो जीरो से तो स्टार्ट होगा नहीं। तो देखिए ये जो इक्वेशन है बेटा, इसको आप I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को, या फिर क्या कह सकते हैं, I इज इक्वल टू माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी कह सकते हैं। माइनस को यदि मैं इधर ले जाऊं, और ये तो आई एम मानूंगा ही मैं, तो माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी, यानी कॉस ओमेगा टी मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। लेकिन माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी है तो नेगेटिव साइड में मैक्सिमम से स्टार्ट होगी वेव, ठीक है। यदि ये होता प्लस आई एम कॉस ओमेगा टी तो पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम से स्टार्ट होती। तो ये वेव जो है नेगेटिव साइड में मैक्सिमम यानी यहाँ से स्टार्ट होगी, t इज इक्वल टू जीरो पर जो आपका करंट है उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। ये देखिए इस तरीके से चलेगी ये वेव, इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से बेटा वेव चलेगी,
इस तरीके से वेव चलेगी। ठीक है, इस तरीके से चलेगी। ये जो वैल्यू है, देखो ये वैल्यू तो आ गई आपकी, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये Vm हो जाएगी। क्या दे देगा ये? Vm दे देगा। और ये क्या है? Im विद नेगेटिव साइन, Im माइनस Im है। ठीक है, अब देखो t इज इक्वल टू 0 पर, भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन? ये रिप्रेजेंट कर रही है I इज इक्वल टू माइनस Im कॉस ओमेगा टी। या फिर क्या लिख सकते हो? I इज इक्वल टू Im साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, माइनस Im, ये देखिए कॉस मतलब यहाँ मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए। अब जहां जहां वोल्टेज मैक्सिमम है ना, जहां वोल्टेज मैक्सिमम है वहां करंट मिनिमम हो जाएगा। जहां वोल्टेज मैक्सिमम है कितने पर? t इज इक्वल टू t/4 पर। अब t इज इक्वल टू t/4 यहाँ रखोगे तो t इज इक्वल टू t/4 रखो। देखो t इज इक्वल टू 0 पर यदि आप देखते हो t इज इक्वल टू 0 पर तो वोल्टेज 0 है और करंट क्या है? माइनस Im है। ठीक है, लेकिन t इज इक्वल टू t/4 पर वोल्टेज क्या हो जाएगा? Vm साइन ओमेगा t/4। इसको सॉल्व करें, Vm साइन ओमेगा t का मतलब 2π/ओमेगा। ठीक है, तो 4 ओमेगा, यानी ये कितना आ गया बेटा? ये 2π/ओमेगा, और ये ओमेगा है ही, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, 2 से ये 4 2, तो क्या आ गया ये? Vm साइन π/2 आ गया। यानी ये किसके बराबर आ जाएगा? मैक्सिमम आ गया। मैक्सिमम आ गया ना V का वैल्यू, किस पर? इस टाइम पर। ठीक है, और लेकिन करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू माइनस Im कॉस ओमेगा टी, यही तो है। तो माइनस Im कॉस ओमेगा टी की जगह t/4। ठीक है, आगे सॉल्व करो, Im कॉस ओमेगा टी की जगह 2π/ओमेगा, ये लो। अब 2 से ये 4 2r, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, π/2 आया ना, तो माइनस Im कॉस π/2, और कॉस π/2 का वैल्यू 0, तो I का वैल्यू क्या आ गया? 0। यानी जब समय ये होता है t इज इक्वल टू t/4 तो I तो देखो 0 है। ठीक है, और वोल्टेज मैक्सिमम है। अगेन फिर जब आप इस t इज इक्वल टू ये तो t/4 हो गया, और यहाँ हो जाएगा t/2। जब t/2 की बात करोगे तो वोल्टेज 0 हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, फिर t की बात करोगे तो वोल्टेज 0 और करंट मैक्सिमम, इस तरीके से चलेगा, क्योंकि दोनों के बीच π/2 का फेज डिफरेंस है। वोल्टेज और करंट दोनों ना तो एक साथ 0 हो रहे हैं, ना एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वेव और टाइम डायग्राम हो गया। क्लियर है ये वेव और टाइम डायग्राम? चलिए अब हम बात कर लेते हैं एवरेज पावर कंजम्पशन। एवरेज पावर कंजम्पशन, जैसे हमने रजिस्टर के केस में पढ़ा था ना, एवरेज पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होता है, वैसे ही हम इंडक्टर के केस में देखना चाहते हैं कि एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होता है। सिंस पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वोल्टेज इनटू करंट होता है। अब वोल्टेज की इक्वेशन क्या है हमारे पास? Vm साइन ओमेगा टी है। और करंट की इक्वेशन क्या है? करंट की इक्वेशन यदि हम देखें तो आई एम विद नेगेटिव साइन कॉस ओमेगा टी, यही तो है, ये है ना। ठीक है, जिसको आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बी एम और आई एम को भी इधर ले लो माइनस के साथ, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये आ गया ना। ठीक है, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब ऊपर जो ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी, ऐसे लिखा जा सकता है। ये तो पावर आई। अब लेकिन हमें चाहिए एवरेज पावर कंजम्पशन, तो एवरेज पावर कंजम्पशन निकालो। अब देखो इसका तो एवरेज निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। कौन? माइनस Vm/Im/2। तो एवरेज किसका निकलेगा? साइन 2 ओमेगा टी का निकलेगा। और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि साइन 2 थीटा हो, कॉस 2 थीटा हो, उसका एवरेज क्या होता है? 0 होता है। तो ये क्या होगा? 0 होगा इसका एवरेज, और इसका एवरेज 0 होते ही एवरेज पावर कंजम्पशन क्या आ गया आपका? 0 आ गया। 0 इंटू दिस 0 आ जाएगा। तो कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता किस केस में? इंडक्टर के केस में।
इसलिए आपने देखा होगा ट्यूबलाइट के नीचे एक चौक लगा रहता है, चौक कॉइल जिसे कहते हैं। चौक कॉइल लगा रहता है ना, रेक्टेंग। आप देखना अपने घर में ट्यूबलाइट के नीचे क्या लगा हुआ है, एक रेक्टेंगल शेप का बीचों बीच में चौक लगा रहता है, वो एक इंडक्टर ही होता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ट्यूब को वोल्टेज कम चाहिए। अब वोल्टेज को कम करना है तो सर इसकी जगह तो हम रजिस्टर भी यूज कर सकते थे। रजिस्टर क्यों यूज नहीं करते फिर ट्यूबलाइट में? क्योंकि रजिस्टर का यूज करके हम वोल्टेज को कम तो कर सकते हैं, लेकिन पावर कंजम्पशन मैक्सिमम हो जाता है रजिस्टर के केस में। लेकिन इंडक्टर के केस में करंट वोल्टेज भी कम हो जाएगा, वोल्टेज भी कम हो जाएगा और पावर कंजम्पशन भी जीरो होगा। यानी बिना लॉस के हम वोल्टेज को कम रिड्यूस कर देंगे। बिना लॉसेज के, एनर्जी लॉसेज के, बिना एनर्जी लॉसेज के हम वोल्टेज को रिड्यूस कर पाते हैं, कम कर पाते हैं। किसकी हेल्प से? इंडक्टर की हेल्प से। इसलिए ट्यूबलाइट में हम इंडक्टर का यूज करते हैं, जिसे आप क्या कहते हो? चौक कहते हो। चौक जो बीचों बीच में लगा रहता है ट्यूबलाइट के। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये फायदा होता है इंडक्टर का। अब देखिए इंडक्टर के ऊपर एक प्रश्न और आता है कि इंडक्टर से यदि एसी करंट को फ्लो करोगे तो क्या वो पास होने देगा, और डीसी करंट को फ्लो करोगे तो क्या वो पास होने देगा? तो बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट के केस में इसका बिहेवियर देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए फॉर एसी, देखो सबसे पहले तो इंडक्टर जो है इतनी रिएक्टेंस ऑफर करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये होती है इंडक्टर की, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई न्यू एल, ओमेगा की जगह ये लिख सकते हो। ठीक है, और ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब एसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी है हमारे कंट्री में वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है। एसी की फ्रीक्वेंसी इतनी है हमारे कंट्री में। तो एक्सएल का वैल्यू कितना आ जाएगा इसके लिए? 2 पाई न्यू की जगह रखा 50 और इंटू एल, यानी कितना आ गया? 100 पाई एल। यानी ये क्या वैल्यू आई? मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम। इसका मतलब जो इंडक्टर है वो एसी करंट के लिए मैक्सिमम रिएक्टेंस ऑफर करता है, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लेकिन यदि हम डीसी की बात करें, फॉर डीसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो होती है। ध्यान रखिएगा, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या है? जीरो होती है। देयर फॉर एक्सएल जो आएगा 2 पाई न्यू, न्यू की जगह क्या रख देंगे? जीरो इंटू एल, तो ये क्या आ गया? जीरो। यानी ये डीसी के लिए कोई रिएक्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा। इट मीन्स एन इंडक्टर जिसे आप कॉइल भी कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो? कॉइल। ठीक है, चौक कॉइल, कॉइल। इट मीन्स एन इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंस एक्सएल इज जीरो फॉर डीसी करंट। ठीक है, ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट, whereas it offers, कौन? इट मीन्स इंडक्टर ऑफर्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस। कैसे कह सकते हो? क्योंकि इसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कितनी आती है? 100 पाई एल। 100 पाई एल जो कि क्या वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो डीसी के लिए सॉरी, whereas it offers maximum resistance for the flow of alternating current और voltage। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब जब अल्टरनेटिंग करंट को आप पास करोगे इंडक्टर से, तो वो पास तो होने देगा लेकिन उसको मिनिमाइज कर देगा। लेकिन डायरेक्ट करंट को वो बिना किसी प्रॉब्लम के पास होने देगा। डायरेक्ट करंट को बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी लॉस के पास होने देगा। तो जब डायरेक्ट करंट इंडक्टर से पास होता है तो कोई लॉस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि डायरेक्ट करंट जब पास होगा तो इंडक्टर का जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो उसमें कोई बैक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और जब बैक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो फिर लॉसेज क्यों होंगे? तो इंडक्टर
जो है डीसी के लिए जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए डीसी को बिना लॉसेज के पास होने देता है, जबकि इंडक्टर एसी के लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए एसी को पास तो होने देगा लेकिन मिनिमाइज कर देगा। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि व्हाट विल हैपन इफ एसी वोल्टेज इज पास थ्रू एन इंडक्टर एंड number 2 DC is passed through inductor. So when AC is passed through inductor, inductor will allow AC but it will minimize the AC because it offers maximum resistance for the flow of alternating current. Number 2, for DC an inductor offers zero resistance, therefore it allow DC to pass through it without any loss. ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके आगे हम एक प्रश्न और कर लेते हैं। एक प्रश्न है और प्रश्न एक लिया है मैंने एग्जाम्पल एनसीईआरटी का और एक लिया है मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। एग्जाम्पल है ये 7.2। ए प्योर इंडक्टर, एक प्योर इंडक्टर है जिसकी वैल्यू दे रखी है 25 मिली हेनरी, इज कनेक्टेड, जुड़ा हुआ है, टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल पता करना है, एंड आरएमएस करंट, और क्या पता करना है, आरएमएस करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। मतलब एक प्योर इंडक्टर है, इस टाइप से एक प्योर इंडक्टर है और ये जिस सोर्स से जुड़ा है वो एसी सोर्स है। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज, तो सोर्स कैसा है, एसी सोर्स है। ठीक है, इससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वही तो आई आर एम एस होगा, तो वो पता करना है आई आर एम एस कितना होगा। ठीक है, और इसका इंडक्टेंस तो दे ही रखा है हमें 25 मिली हेनरी, ये दे रखा है। ठीक है, और ये सोर्स जो इस सोर्स का जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये तो डायग्राम हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है सबसे पहले एक्सएल। तो सिंस एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, ओमेगा को लिखते हो आप 2 पाई न्यू इंटू एल। अब देखो 2 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू, और फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और एल कितना है 25 मिली, मिली मतलब इतना हेनरी। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50, 50 50 2500 यानी 3.14 इंटू 2500। ठीक है, और इंटू 10⁻⁻²। और इसको सॉल्व करें तो जो वैल्यू आएगी बेटा, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर यदि इसको सॉल्व किया जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ये देख लें। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी 25 4 जा 100 0 10 35 का 5 3 25 3 जा 75 और 3 78 और 2 जीरो और हैं, और ये 2 यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये 2 जीरो तो चले जाएंगे, यहाँ पॉइंट लगेगा बेटा। तो ये कितना आ जाएगा 7850 इंटू 10⁻⁻², और इसका मतलब 78.5 ओम आ जाएगा इसका वैल्यू। किसका वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻² है, और ये कितना आया था, अच्छा 7850। ठीक है, ये हो गया 3.14 हो गया, और ये -3 है। अब इसमें हाँ ये -3 है ना, -2 नहीं है, ये -3 है बेटा ये। ठीक है, -3, ये -3। अब देखो ये कितना आ जाएगा 7.85 ओम। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सएल की। भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट भी क्या होता है, ओम होता है, ध्यान रखिएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट भी क्या होता है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जहाँ पर आपने लिखा, इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट। चूंकि ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है,
क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? ओम, जिसे क्या लिखा जाता है, इस तरीके से सिंबल बनाया जाता है, तो यूनिट ओम होता है इसका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई। और आरएमएस करंट कितना होगा? आरएमएस करंट निकालूं तो आई आर एम एस क्या होगा? वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस। भाई इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? एक्सएल के बराबर होगा। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है? 220 और एक्सएल कितना है? 7.85। 7.85, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.85 है, तो इसको 2200, 20 और ये पॉइंट हटाएंगे तो 785, और ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 28 एम्पियर। कितनी आ जाएगी? 28 एम्पियर। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे तो 28 एम्पियर ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7.3, ये एक्सरसाइज का प्रश्न है 7.3। 7.3 क्या कह रहा है? देखिए, ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। किससे जुड़ा हुआ है? 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो सर्किट में आरएमएस वैल्यू क्या होगा? किसका? करंट का, ये पता करना है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा सर्किट में, ये पता करना है। ठीक है, ये एल हो गया आपका, और ये वोल्टेज हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। आरएमएस वैल्यू करंट का पता करना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट नेट पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो नेट पावर एब्जॉर्ब तो जीरो हो जाएगा, सब जानते हैं। इंडक्टर के केस में एवरेज पावर कंजम्पशन तो जीरो होता है। ठीक है, एवरेज पावर कंजम्पशन क्या आता है? जीरो आता है। तो क्या क्या गिवन है देखो, इंडक्टर है, ये इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए सोर्स, एसी सोर्स है, जिसका वोल्टेज 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। और एल का वैल्यू दे रखा है 44 मिली हेनरी। ठीक है, आरएमएस वैल्यू, इसमें जो करंट आई फ्लो होगा, जो कि आई आरएमएस ही तो होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस चाहिए, आई आरएमएस चाहिए, तो क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए, यानी रेजिस्टेंस का मतलब एक्सएल चाहिए। एक्सएल क्या है? ओमेगा एल। ओमेगा क्या है? 2 पाई न्यू एल, और 2 पाई का मतलब इतना, और न्यू का मतलब 50, और एल का मतलब 44 मिली हेनरी, ये होता है। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? इसको इतना ही रहने दो, आगे कैलकुलेशन में देख लेंगे। ओम आ गया ये वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हमें आई आर एम एस चाहिए। आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा? वी अपॉन एक्सएल होगा। होगा या नहीं होगा? वी अपॉन एक्सएल, और वी का वैल्यू क्या है? 220। ठीक है भाई, और एक्सएल का वैल्यू यहाँ रख दो, 3.14 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। अब देखो ये 10, ठीक है, और ये 2, और ये 5, और ये 10, हो गया ना इजी। तो देखिए ऊपर बचा 1, ऊपर कितना आया? 1, और नीचे 8, 2 और 6 to 8 आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, और -2 और ये -3, ये दो के देखिए डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है ना, तो -2 हो गया, और ये -3, -5, और ये 10 है, तो 10 को तो ये लिख लिया, और ये -5 हो गया। अब -5 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा +5, और 6 2 8 0, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो कितना आया? देखो 5000 2 से कैंसिल करोगे तो इतना आ गया, 5000 अपॉन 319, ये वैल्यू आ गई 5000 अपॉन 319। ये किसकी वैल्यू आई? 5000 अपॉन 319। अब इसमें आप डिवाइड करो तो 1 बार जाएगा, है ना, 319 है, और ये 500 है तो 1 जाएगा, फिर लगभग 200 बचेगा, तो फिर 5 के आसपास जाएगा, तो 15
0.9 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी किसकी, आरएमएस करंट की। ये वैल्यू आ जाएगी आरएमएस करंट की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आरएमएस करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब एवरेज पावर यदि आप एवरेज पावर कंजम्पशन देखोगे तो कितना आएगा, एवरेज पावर कंजम्पशन, नेट पावर कंजम्पशन जो होगा इंडक्टर के केस में, एंड नेट पावर एब्जॉर्ब्ड आप जानते ही हो बाय द सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल क्या होगी, जीरो होती है। इंडक्टर के केस में क्या आती है, जीरो आती है, ध्यान रखिएगा, सीधे लिख सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है। तो कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा जब इससे करंट फ्लो होगा। तो आज हमने इस टॉपिक में बात की एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, और एक न्यू टर्म इसमें हमें देखने को मिली, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका यूनिट ओम होता है। एक्सएल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक्सएल भी बढ़ जाएगा। इंडक्टर से आप जब एसी करंट को पास करते हो तो वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है एसी के लिए, इसलिए वो फ्लो तो होने देगा लेकिन उसको मिनिमाइज कर देगा। डायरेक्ट करंट के लिए कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, इसलिए बिना किसी लॉस के पास होने देगा डायरेक्ट करंट को। उसके बाद में हमने एवरेज पावर कंजम्पशन देखा तो वो भी जीरो आया, वोल्टेज और फेजर डायग्राम देखे, और फिर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।